Hello, good morning everyone. Welcome in the topic revision of polynomial. Before we start the revision of the polynomial, I just thought of taking a revision of all the identities because I don't know how many of you remembering it, and I'm telling you to remember the identity, but still I don't know how many of you are actually remembering it. So it's better I will take a short revision of all the identities in this particular video in the beginning. So a plus b the whole square, a square plus 2ab plus b square, everyone knows this identity. It's not a big deal, right? This is very simple. Then we have this is a very simple identity. Then we have a minus b the whole square, a square minus 2b plus b square. Even we know that, and this also it was there in 8th standard. So I don't think you have any difficulty. A plus b into a minus b is equals to a square plus a square minus b square. So these identities are very simple. Fourth one was also there, but this time even if we have a minus sign for b and c, then what to do, that also we have seen. So that please go through it again. A plus b the whole cube is a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. Now normally people get confused with this identity and this identity. That means a plus b the whole cube, and here is a cube plus b cube. So please don't get confused. I don't think that now you don't know the difference between these two identities. You know that, okay? So unnecessary people make these kind of mistake, that they interchange the identity. Okay, and same thing for negative as well. Two important identities I purposely written separately, that is a cube plus b cube plus c cube minus 3abc is equals to this one. And if a plus b plus c is equal to 0, we have a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc. Very important, very important. And even this is very important. So at least one question of these two identities you will find in the paper. At least one question each paper after this. Whenever there is a polynomial topic, one question of this identity surely you will find in the paper. Okay, so keep that in mind, that you need to remember this very properly, very thoroughly. And if question comes of this category or this identity, you must know about it. Okay, so chalo, let's understand the question. The very first question is the same thing that you have to prove. चलो आज हम लोग कहाँ तक कंप्लीट करना है, दैट आई विल टेल यू. 27, ठीक है, हम लोग 27 को है, राइट? तो मुझे लगता है हम लोग आज ये पेपर ये कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है, 54 तक इफ़ पॉसिबल. ठीक है, इफ़ पॉसिबल. आई डोंट थिंक इफ इट इज़ पॉसिबल बिकॉज सो मेनी क्वेश्चंस आर देयर. In this particular part of the topic we have all identity, maximum questions are of identity. तो ठीक है, चलो वर्कआउट करते हैं, सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले शो करना है ये इक्वल टू 0. तो ये कैसे शो करना है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये आइडेंटिटी है. आइडेंटिटी लिखो, ये आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई minus yz minus xz, right? This is the identity. You remember 9th identity just now I told you. Here I know that x plus y plus z is equals to, I'm talking about 27th question. Here I know that x plus y plus z is equals to 0. So 0 into anything, whatever the bracket is going to be always going to remain 0. So x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equals to 0. So shifting this 3xyz to the other side, I get x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz, and the answer is done, finished. नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन सेम आइडेंटिटी यूज करना है, यही 27th वाला ही आइडेंटिटी यूज करना है. देखते हैं. इफ x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0, मतलब ये isn't it looking like a plus b plus c is equal to 0, right? It's looking like that, isn't it? तो what we know about this, that I'll write first. तो अगर x plus y plus z is equal to 0 है, तो what we know about it, forget about what I am asked to find out. तो चलो इसका मतलब क्या है वो लिखते हैं. तो इसका मतलब ये बनता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc. abc मतलब वही x इंटू वाई इंटू 4, ठीक है ना? तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 4 का क्यूब 64 इज इक्वल टू 12xy. ये 12xy यहाँ पे शिफ्ट कर सकता हूँ मैं. कैन आई शिफ्ट दिस 12xy दिस साइड? तो आई गेट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 64 माइनस 12xy इज इक्वल टू 0, एंड दैट्स द आंसर. वही है, देख लो एक बार. तो ये आइडेंटिटी का यूज़ करना समझ में जल्दी नहीं आता, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन ऐसे दिए. 2-4 और क्वेश्चन है ऐसे ही इसी कैटेगरी के. फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये भी वही है, देखो
दिखने के लिए समझ में आता है ये वही आइडेंटिटी का, लेकिन देने के लिए देखो, देने के लिए उन्होंने क्या दिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 को इधर शिफ्ट करते हैं, तो इट इज़ x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 4। इट इज सेम लाइक a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है, इट इज सेम लाइक दैट। लेकिन आप बोलोगे कि ये तो वैसे दिख नहीं रहा है क्योंकि माइनस साइन है 5 को, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ये a है ये b है एंड माइनस 5 सी, ऐसे कंसिडर करते हैं। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस माइनस 5 होल क्यूब इज इक्वल टू 3xy इंटू माइनस 5। इन दिस मैनर वी कैन कंटिन्यू। तो आई हैव एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 125 इज इक्वल टू माइनस 5 3 15xy। 15xy इधर शिफ्ट कर दिया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 15 का प्लस 15xy माइनस 125 इज ऑल दैट इक्वल्स टू 0। तो हमारा आंसर यहाँ पर भी क्या आता है, 0 आता है, वही पूछा है, देख लो एक बार। यही है आइडेंटिटी का कमाल, देख लो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं फटाफट। 30th क्वेश्चन हमने ये सिंप्लीफाई या फिर सॉल्व किया हुआ है ऑलरेडी हमारे वर्कशीट में, तो देखते हैं। देख लो यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दिख रहा है, नीचे भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दिख रहा है, लेकिन डू आई हैव ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो न्यूमरेटर देखो पहले, न्यूमरेटर में ए है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी इज बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड सी इज सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज ऑल दैट इक्वल टू 0। तो डू आई हैव ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब, मतलब ए क्यूब मतलब इसका क्यूब, मतलब क्या है वो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर द होल क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर द होल क्यूब, द न्यूमरेटर आई एम टॉकिंग अबाउट, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर द होल क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc। abc मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी मतलब बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी मतलब सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये हो गया सिंप्लीफाइड न्यूमरेटर। सिमिलरली वी हैव a माइनस बी द होल क्यूब प्लस b माइनस सी द होल क्यूब प्लस c माइनस a द होल क्यूब इज इक्वल टू 3abc। abc मतलब a माइनस बी, b माइनस सी एंड c माइनस a। अभी इन दोनों को क्या करना है, डिवीजन करना है। 3 3 तो एज इट इज गोइंग टू गेट कैंसिल। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट ए माइनस बी एंड दिस ए माइनस बी गेट कैंसिल, बी माइनस ए एंड दिस ए बी माइनस ए, सी माइनस ए दिस सी माइनस ए। तो व्हाट इज लेफ्ट हियर इज ए प्लस बी, हियर इज बी प्लस ए, नियर इज सी प्लस ए, एंड दैट्स द आंसर गिवन देयर। ठीक है, सो वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट कंप्लीट करते हैं। प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस, ऐसे मुझे प्रूव करना है, ये भी हमने किया हुआ है। इसको कैसे करना है, जब भी ऐसे प्रूव दैट वगैरह क्वेश्चन आता है तो LHS RHS करना है। LHS हमारा क्या है, एक ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 3abc एक आइडेंटिटी है, तो LHS नहीं लेते हम लोग लेंगे RHS। आइडेंटिटी है तो ईजी हो जाता है सिंप्लीफाई करना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अभी मैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड को कुछ नहीं करता, जो न्यूमरेटर जो दूसरे ब्रैकेट में है उसको सॉल्व करता हूँ। इट इज़ एक्स माइनस वाई द होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया मेरा ब्रैकेट सिंप्लीफिकेशन। तो 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस माइनस एंड माइनस 2xz, राइट। तो आई हैव 1/2, 2 कॉमन निकाल सकते हैं इसमें से, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2 नहीं, एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। 2 कॉमन निकाला तो यहाँ पे 2 निकल गया, 2 and 2 कैंसिल हो जाएगा। व्हाट आई एम लेफ्ट विथ, दिस ब्रैकेट इंटू दिस ब्रैकेट विच विल बी इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz एज अ आइडेंटिटी एंड विच इज़ नथिंग बट माई LHS, सॉरी, दैट्स इट। फटाफट कंप्लीट करते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। ये किया हुआ क्वेश्चन है, कमन आगे बढ़ेंगे। सिंप्लीफाई एंड फैक्टराइज, ओके, सिंप्लीफाई करना है उसके बाद फैक्टराइज करना है, यही मैं बात कर रहा था क्वेश्चन की। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है इसके बारे में सोचते हैं। थोड़ा सा वियर्ड लग सकता है आपको, हम लोग लेकिन सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 32nd क्वेश्चन, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। थोड़ा सा HOTS कैटेगरी का ही क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। तो ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर माइनस ऑफ ए माइनस बी माइनस सी द होल स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस सी ए स्क्वायर, 4c स्क्वायर
ठीक है, तो ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, ये तो हमें पता ही है। माइनस ऑफ ये जो है ये ठीक से हमें लिखना है, माइनस साइन है इसलिए। तो कैसे करना है मैं आपको समझाता हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बिकॉज स्क्वायर टर्म है यहाँ पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है साइन का, लेकिन अभी आगे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। 2ab ए इंटू बी करो तो माइनस 2ab, बी सी तो प्लस 2bc, दोनों को माइनस साइन है, माइनस 2ac। ठीक है, नाउ द साइंस विल चेंज, ऑफकोर्स ये भी है तो हम भूलेंगे नहीं उसको। 4b स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर इज इक्वल, अभी देखो साइन चेंज हो जाएगा। ए स्क्वायर गेट कैंसिल, बी स्क्वायर सी स्क्वायर विल गेट कैंसिल। 2ab प्लस हो जाएगा तो 4 2ab रहेगा, सॉरी 4 2ab नहीं 4ab रहेगा। बी सी पॉजिटिव है तो ये निगेटिव हो जाएगा, बी सी कैंसिल हो जाएगा, ए सी प्लस 4ac रहेगा, प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर रहेगा। दैट्स इट। तो इन सब में से 4 कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग। आई एम लेफ्ट विथ इसमें से अगर सॉरी चलो ठीक है, ए बी प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो 4 कॉमन निकल गया। अभी इसमें से मैं ए कॉमन निकालूंगा, आई एम लेफ्ट विथ बी प्लस सी, ये हो जाएगा बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी। ठीक है, अभी इन दोनों टर्म में से बी प्लस सी कॉमन निकालूंगा, तो 4 इंटू ब्रैकेट बी प्लस सी, व्हाट इज लेफ्ट इन साइड द ब्रैकेट, ए रह गया इधर, प्लस यहाँ पे बी प्लस सी गया तो बी माइनस सी। ये हो गया आपका कंप्लीट फैक्टराइजेशन, डन। देखा कितना वियर्ड कैटेगरी था, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे बहुत रेयरली क्वेश्चंस होंगे, लेकिन इट शुड नॉट हैपन दैट आई डिड नॉट टीच यू, सो दैट्स द रीजन वी हैव टेकन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस एज वेल। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। 33rd क्वेश्चन, y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी। मुझे लगता है ये पिछले सेशन में हमने ये कंप्लीट कर दिया है। y इज इक्वल टू 2 पुट करो, एक इक्वेशन मिलेगा, y इज इक्वल टू 0 मिलेगा, पुट करो, यू गेट b वैल्यू एंड यू विल गेट b इज 0 एंड a इज 2। आई थिंक वी हैव डन दैट। ये आगे करते हैं। 34th क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्वेश्चन हो, 34th क्वेश्चन। ओके, मतलब कुछ नहीं करना है, ये सब सॉल्व करना है। एफ ऑफ 2 फाइंड करो, विच इज़ 2 स्क्वायर माइनस 10 प्लस 7, तो 4 माइनस 6 6 1 1 होगा, मुझे लगता है 1 होगा, पता नहीं, करेक्ट है ना। 4 माइनस 6 एंड 1, यस, माइनस 1 करते हैं, माइनस 1 द होल स्क्वायर माइनस प्लस 5 प्लस 7, तो ये होगा माइनस 1 द होल स्क्वायर 1 1 माइनस 5 4 3 इस 3। ठीक है, and then we are left with f of 1 by 3, right? 1 by 3 the whole square, okay, minus 5 by 3 plus 7, which can be equal to 1 by 9 minus 5 3s are 15 by 9 plus 7 3s are 20, 7 9s are 63 by 9। ठीक है, तो what we get here is 64 minus 15, 64 minus 15, तो 9 1 कैरी, 6 minus 2 4, 49, 49 अपॉन 9। ये तो क्लियर हो गया। अभी इन सबका क्या करना है, इस कॉम्बिनेशन में जो भी कॉम्बिनेशन पूछा है, सो देयरफॉर एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ माइनस 1 इसमें पुट करना है, प्लस एफ ऑफ 1 बाई 3 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 2 इज़ 1 माइनस 3 प्लस 49 बाई 9। ठीक है ना, तो कर सकते हो आप लोग, अभी 9 से मल्टीप्लाई करो इसको, 9 बाई 9, 9 27 बाई 9 एंड यू गेट योर आंसर। आंसर तो वहाँ पे है ही। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 35th क्वेश्चन अगेन रिपीट हुआ है, तो कोई बात नहीं, आई थिंक यू कैन ईजिली डू इट। ऑन डिवाइडिंग बाई दिस 36th क्वेश्चन, ये थोड़ा सा वियर्ड कैटेगरी है। ऑन डिवाइडिंग बाई दिस पॉलिनोमियल पी ऑफ वाई सॉरी इज इक्वल्स टू 5y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 1 बाई वाई, इसको डिवाइड कैसे किया, y से किया। व्हाट इज द रिमाइंडर, y माइनस 1 होता
ठीक है, y-1 या फिर y+1, y-1 होता तो हम लोग कैसे करते इसको, p(1) पुट करके हम रिमाइंडर मिल जाता हमें। y+2 होता तो -2 पुट करते एंड मुझे आंसर आ जाता, रिमाइंडर आ जाता, राइट? यस नो, यस नो, राइट। लेकिन यहाँ पे अभी सिर्फ y है तो क्या पुट करेंगे, यही प्रॉब्लम है। तो ये बेसिकली क्या होता है, आई टेल यू, जब सिर्फ y होता है तो y+0 होता है, तो हम लोग क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। -0 तो 0 ही होता है, तो 0 पुट करेंगे। तो 5 × 0 क्यूब प्लस 2 -2 × 0 क्यूब -7 × 0 + 1 = 0 नहीं करना है, क्योंकि ऐसे कुछ दिया नहीं है कि वो फैक्टर है कि नहीं है, राइट। तो आंसर आएगा 1 एंड दैट्स द रिमाइंडर। ठीक है, हिंट दिया था मैंने ऑलरेडी। चलो आगे बढ़ते हैं। 37th क्वेश्चन, दिस इज ओके, फाइंड द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग बाय दिस वन यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। दैट मीन्स p(x) दिया हुआ है विच इज x³ + x² + x + 1। p ऑफ क्या करेंगे, x - 1/2 को = 0 करके x = 1/2 पुट करेंगे। तो 1/2 पुट किया तो 1/2 द होल क्यूब प्लस 1/2 द होल स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस 1/1, ठीक है ना। 1/2 होल क्यूब 1/8 हो जाएगा, ये 1/4 मतलब 2/8 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 4/8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/8 हो जाएगा, ठीक है ना, मेकिंग द डिनोमिनेटर सेम। तो 4 + 2 6 + 1 7 + 3 15/8 हो गया, आंसर आ गया, दैट्स इट। बहुत ही सिंपल है, रिमाइंडर इजीली आ गया, ठीक है ना। बाय एक्चुअल डिवीजन फाइंड द क्वेश्चन एट रिमाइंडर, ये तो आपको पता है, डिवीजन कर सकते हैं आप लोग खुद से भी, आई डोंट हैव टू टेल यू। लेकिन हाँ, ये डिवीजन थोड़ा सा वियर्ड है, लास्ट टाइम हमने किया है ये डिवीजन, आई रिमेंबर दैट। ओके, तो वो बस एक बार चेक कर लो, प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लो, ठीक है। 39 क्वेश्चन, ये फिर से 37 को 8 क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। 39 क्वेश्चन देखते हैं। 39 क्वेश्चन क्या है, find the value of a if remainder is same when polynomial this is divided by this and this. That means there is a polynomial p of x which is x³ plus 8x² plus 17x plus ax. हमने ये क्वेश्चन किया हुआ है, p of is divided by x plus 2, मतलब p of -2 if I put I get r1, तो -2 the whole cube plus 8 into -2 the whole square plus 17 into -2 plus ax भी है क्या, ओके, a इंटू -2, तो आई गेट रिमाइंडर, सम रिमाइंडर r1 मुझे मिल जाता है। तो इट इज़ -1 -8 8 4 ज़ा 32, पॉजिटिव रहेगा -34 एंड -2a इज इक्वल्स टू r1। तो वी हैव हियर -2 -2 एंड -8 -10 -2a is equals to r1. Similarly, p of -1 if I put, because it is divided by x plus 1 as well, so I get -1 the whole cube plus 8 into -1 the whole square plus 17 into -1 plus a into -1 is equals to r2, second remainder. So -1 plus 8 minus 17 minus a is equals to r2. So we have here 7 plus 7 is -10 again, -10 minus a is equals to r2. ये रहा आपका सेकेंड वन। तो आई थिंक वी आर वेरी क्लियर विद द क्वेश्चन नाउ। इफ आई मेक r1 इज इक्वल्स टू r2, देखो, सो नाउ r1 इज इक्वल्स टू r2, क्योंकि रिमाइंडर क्या है, सेम है। तो r1 इज इक्वल टू r2 क्या है, तो -10 -2a इज इक्वल्स टू -10 माइनस ए, 10 एंड 10 गेट कैंसिल, ए इधर शिफ्ट हो गया तो 0 हो जाएगा उस तरफ, तो -2a प्लस ए इज इक्वल टू 0, तो वी इम्प्लाइज वी हैव -a इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू 0, दैट्स इट, काम खत्म। ओके, ईजी है ना, ईजी है। जब आप लोग 2-3 बार करोगे ना ऐसे ही क्वेश्चंस को, तो आपको बहुत ईजी लगेगा। एक एक क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये डिवीजन है, फिर से देखो, डिवीजन में आपको क्या 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 फाइंड करना है, फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर फाइंड करना है, दैट्स इट। रिमाइंडर का आंसर दिया है, क्वेश्चन का आंसर दिया है। डिवीजन नहीं आ रहा है, डिवीजन का वीडियो देखो, फिर से प्रैक्टिस करो, यही मैं बोल सकता हूँ। डिवीजन आपको खुद से ही करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। 41 क्वेश्चन देखते हैं। 41 क्वेश्चन थोड़ा सा वियर्ड है। द पॉलिनोमियल दिस एंड दिस आर डिवाइडेड बाय दिस, लीव रिमाइंडर p एंड q, ठीक है, मतलब एक p देता है, q देता है। चलो हम लोग p एंड q फाइंड करते हैं। तो p ऑफ x इज इक्वल्स टू ax³
माइनस 3x² प्लस 4x एंड q ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x³ माइनस 5x प्लस a. बोथ आर बीन डिवाइडेड बाई x माइनस 2, दैट मीन्स p ऑफ 2 हम लोग अगर फाइंड करेंगे तो 8a 4 3 ज़ा माइनस 12, 4x है क्या, 4x नहीं है, गलती से आ गया इधर, ठीक है ना, प्लस 4 इज इक्वल्स टू p आएगा बिकॉज इट इज़ लिविंग रिमाइंडर p, यू कैन चेक दैट, रीड इट केयरफुली. ओके, तो ये 8a माइनस 8 इज इक्वल्स टू p आ गया. सिमिलरली q ऑफ x, अगर मैंने इसको q ऑफ 2 देखा तो इट विल बी 8 2 ज़ा 16 माइनस 5 2 ज़ा 10 प्लस a है, तो इट इज़ गोइंग टू बी 6 प्लस a एंड विच इज़ इक्वल्स टू q. ये रहा आपका p एंड q. बट व्हाट आई नो, p माइनस 2q इज इक्वल्स टू 4. अभी इसमें p एंड q फाइन पुट कर दो तो ये हो जाएगा 8a माइनस 8 माइनस 2 इंटू q, दैट इज 6 प्लस a इज इक्वल्स टू 4. ऐसे भी क्वेश्चन हमने किए हैं, हमने इसको R1 R2 के हिसाब से किया हुआ है, यहाँ पे p एंड q के हिसाब से दिया हुआ है. तो 8a माइनस 8 माइनस 2 6 ज़ा 12 माइनस 2a इज इक्वल्स टू 4 हो गया. तो ये हो गया 6a और 20 हो गया ये, प्लस 20 माइनस 20 और इज इक्वल्स टू 4, माइनस 20 उधर शिफ्ट हो गया, तो 6a इज इक्वल्स टू 24, a इज इक्वल्स टू 4 एंड दैट्स द आंसर. ठीक है ना, बहुत इजी है, मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली बेसिकली मैं बोल रहा हूँ आपको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है. फैक्टराइज करना है, आपको पता है फैक्टराइज कैसे करते हैं, होप यू नो दैट. 20x² माइनस 9x प्लस 1, तो 20 टू बी स्प्लिट टू गेट माइनस 9, यह पता है आपको, 20 इंटू 1, तो 5 4 ज़ा 20 बोथ माइनस, तो 20x² माइनस 5x माइनस 4x प्लस 1 कैन बी टेकन कॉमन, यू कैन डू दैट आफ्टर दैट. ठीक है, ये नहीं आ रहा है तो मुझे बताओ, आई विल हेल्प यू. फाइन, फैक्टराइजेशन नहीं आ रहा है तो सेपरेटली आई विल हेल्प यू बिकॉज इट्स ईजी नॉट डिफिकल्ट. चलो आगे बढ़ते हैं. फाइंड फैक्टर्स ऑफ, तो a³ माइनस 1 मतलब 1³ ये समझ लो. तो a³ प्लस b, a³ माइनस b³ का फॉर्मूला क्या है, a माइनस 1 इंटू a² माइनस a प्लस 1, a² प्लस a प्लस 1, माइनस है ना, तो यहाँ पे सभी प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है, दैट्स इट. आंसर तो आ ही गया, वही आंसर है. फिनिश्ड. आइडेंटिटी आपको याद है तो बहुत इजी हो जाता है. देखो, राइट द फैक्टर्स ऑफ, तो इसको फैक्टराइज करना है तो लगने के लिए बहुत डिफिकल्ट लगता है. देखो 4x² है प्लस y² है प्लस 4xy है प्लस 8x है प्लस 4y प्लस 4, ऐसा पूरा का पूरा है. एंड देन इसको फैक्टर्स कैसे करें समझ में नहीं आता. बट लेट मी टेल यू, आइडेंटिटी अगर आपको पता है तो ये सारी चीज़ें बहुत बहुत सिंपल हो जाती है. तो सबसे पहले ये आइडेंटिटी कौन सी है, इसको समझने की कोशिश करो. देखो स्क्वायर टर्म्स ढूंढो. देखो यहाँ पे अगर स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो 3 बार स्क्वायर है, इसका मतलब भी कौन सी आइडेंटिटी पता है, a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर. तो इट इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू 2, जो भी एक स्क्वायर टर्म्स है उसको स्क्वायर कर दो, y का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4x, बाकी ऐसे ही रखो सब कुछ, प्लस 8x प्लस 4y. ठीक है, अभी ये है मेरा a, ये है मेरा b, ये है मेरा c, तो 2x प्लस y प्लस 2 द होल स्क्वायर, ख़त्म हो गया मेरे फैक्टर्स. 2x प्लस वाई प्लस 2 इंटू 2x प्लस वाई प्लस 2, फिनिश्ड. दैट्स इट. आइडिया क्लियर? आई जस्ट होप यू अंडरस्टूड इट. चलो आगे बढ़ते हैं. आइडेंटिटी बस, और कुछ नहीं है. आपको आइडेंटिटी आ गया मतलब ये आ गया, दैट्स इट. क्लियर? जस्ट होप यू अंडरस्टैंड. ओके, तो आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं. ये हमने किया हुआ है ऑलरेडी, 45th सम ऑलरेडी किया हुआ है, रिपीट हो चुका है सम कुछ. ठीक है, x माइनस इज ए फैक्टर, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस. ओके, तो ये फैक्टर है, तो p ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x² माइनस mx माइनस nx. तो p ऑफ a इज इक्वल्स टू 3a², राइट. ओके, माइनस ma माइनस na इज इक्वल्स टू 0, बराबर है. तो what I can do, a can be taken common from all these terms, a into bracket 3a minus m minus n is equals to 0. a can be shifted there, it will be 0. 3a minus m minus n is equals to 0. a वहाँ पे शिफ्ट होने के बाद डिवाइड हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो 3a is equals to m plus n, a will be equal to m plus n by 3. हो गया, काम खत्म. सो वेरी सिंपल, सो वेरी सिंपल. ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं.
ये भी हमने 47th क्वेश्चन भी हमने किया हुआ है। करना क्या है, कुछ नहीं करना, पी एंड आर की वैल्यू फाइंड करनी है बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ दैट इनटू द गिवन पॉलिनोमियल। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर। तो पी ऑफ 2 विल गिव यू 0 आंसर, बराबर है ना। तो पी ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस आर इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये फैक्टर्स है, समझने की कोशिश करो, ये फैक्टर्स है, राइट। तो 4p प्लस 10 प्लस आर इज इक्वल टू 0। तो 4p, हाँ, सो आई कैन गो फॉर आर इज इक्वल टू -4p माइनस 10, जो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं, ठीक है। ये बहुत रेयरली आता है ये क्वेश्चन, बट फिर भी ऐसा ना हो कि आपको पता ही नहीं है इस क्वेश्चन के बारे में। तो p ऑफ 1/2 इज इक्वल्स टू p/4 प्लस 5/2 प्लस आर इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये फैक्टर है। तो इसको अगर मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया और या फिर डिनोमिनेटर सेम किया, तो आई गेट p/4 प्लस 10/4 प्लस 4r/4 इज इक्वल टू 0। 4 कॉमन निकाल के वहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो p प्लस 10 प्लस 4r इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, p इज इक्वल टू आर की जगह पे ये पुट कर सकता हूँ मैं, इफ़ आई वांट, या फिर इन दोनों इक्वेशन को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, जैसे भी हो। तो आर आई कैन रिप्लेस इनटू दिस, ये जो आर की वैल्यू है ये मैं इस वैल्यू इक्वेशन में पुट करता हूँ, p प्लस 10 प्लस 4 इंटू 4p माइनस 4p माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो p प्लस 10 माइनस 4 4 16p माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो 15 माइनस 30, ये देखो -15 p, ये होगा -30, वहाँ पे शिफ्ट होने के बाद 30 हो जाएगा, p इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। ये -2 की वैल्यू अगर मैंने इसमें पुट कर दी r में, r इज इक्वल टू -4 इंटू -2 माइनस 10, आई गेट 8 माइनस 10 विच इज़ -2। तो आई होप यू गॉट इट कि r इज इक्वल टू p, ये आ गया, ठीक है। p इज इक्वल टू r, तो दोनों वैल्यूज -2 है एंड आई गॉट द आंसर, फिनिश्ड। सो वेरी सिंपल, सो वेरी सिंपल, ठीक है ना। 48th सम इज़ बिट वियर्ड, आई एक्सपेक्ट कि वो बहुत ही वियर्ड है, कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, लेकिन फिर भी इफ़ यू वांट वी कैन डिस्कस इट, बट लेटर ऑन, नॉट नाउ, ठीक है। उसके बाद जो है वो सारे क्वेश्चन किस कैटेगरी के हैं, फैक्टराइजेशन कैटेगरी। यू रिमेंबर फैक्टराइजेशन कैसे करना होता है। तो बस एक क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ एंड देन यू कैन डू इट योरसेल्फ। 51 क्वेश्चन में समझा देता हूँ, विच इज़ x³ प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। मैंने पर्पजली इसके आंसर्स नहीं दिए। वाई डिडंट आई गिव द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस? द reason why I did not give you answer, because looking at the answer you will easily guess the zeros, and if you guess it, it will be useless in examination, you won't able to guess it. So that's the reason I did not give the answer for this, ठीक है। चलो, तो कैसे करेंगे इसको, कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपली हमें क्या करना है, इसको p ऑफ x कंसिडर करना है एज x³ प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, एंड हमें +1 -1 या फिर +2 -2 पुट करते जाना है इस वैल्यू में, एंड जो भी ज़ीरो देगा ये प्रॉपरली करना है। जो भी आंसर ज़ीरो देगा दैट विल गिव अस माय फर्स्ट ज़ीरो और फर्स्ट फैक्टर। यूजिंग दैट फैक्टर आई कैन डिवाइड एंड गेट द अदर रिमेनिंग फैक्टर्स। ओके, दिस इज द प्रोसेस आई फॉलो। पूरा सम सॉल्व करके आपको मैं दिखा देता हूँ, डोंट वरी। तो -1, क्योंकि प्लस से कुछ तो हमेशा वो प्लस ही रहेगा, तो -1 में पुट करता हूँ। p ऑफ -1 देखते हैं, -1 हो जाएगा, ये +13 हो जाएगा, ये -32 हो जाएगा और ये +20 हो जाएगा। तो होपिंग दैट इट विल गिव यू, येस इट इज़ गोइंग टू गिव अस 0 इज इक्वल टू 0। so therefore x plus 1 is a factor. Remember, if -1 is 0, x plus 1 is a factor. तो x plus 1 फैक्टर है, तो इस पॉलिनोमियल को मैं क्या करूँगा, x plus 1 से डिवाइड करूँगा। x plus 1 से आई एम डिवाइडिंग बाय x plus 1, x³ प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 को। तो ये हो जाएगा x² एज ए क्वोशंट, x³ प्लस x²
साइन चेंजिंग 12x² प्लस 32x प्लस 20, राइट, प्लस 12x², तो 12x होगा, आई एम सॉरी, x² प्लस 12x माइनस दिस गेट कैंसिल, यहाँ पे 20x आ जाएगा प्लस 20, तो प्लस 20 तो 0 हो जाएगा. आई होप यू गॉट इट. सो देयरफॉर वी हैव टू फैक्टराइज नाउ x² प्लस 12x प्लस 20. नाउ x² प्लस 12x प्लस 20 इज इक्वल्स टू, देखो एक फैक्टर तो मुझे ये मिल गया, ये वाला मिल गया, रिमेनिंग वन ये है, इसका फिर से अगर फैक्टराइज करूँगा तो मुझे रिमेनिंग फैक्टर्स मिल जाएंगे. तो ये होगा 12 5 4 नहीं 10 2 12, तो x² इट विल बी इक्वल टू x² प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, तो इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स प्लस 10 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 10, तो वी हैव x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 10. ठीक है ना, दैट्स इट. सो देयरफॉर द p ऑफ x, दैट मीन्स द ओरिजिनल वाला 51 क्वेश्चन देख लो ऊपर, इज इक्वल्स टू x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 10, तो कंप्लीटली फैक्टर्स हो गया. इफ़ यू वांट टू फाइंड जीरोस तो वो भी फाइंड कर सकते हैं. जीरोस आर -1 -2 एंड -10. ओके, वो भी आप लोग फाइंड कर सकते हो. तो दोनों का आंसर वही होगा. देखो इतना छोटा सा बड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन है. क्लियर. तो ऑल दिस क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए, तो कंप्लीट करो. यहाँ तक आज कंप्लीट करेंगे. फिर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन दिए उसको क्या करना है वो हम लोग बाद में देख लेते. ज़्यादा भी नहीं है, कम है, तो वो भी हम लोग करेंगे इन केस इफ़ वी नीड इट. ठीक है, लेकिन करेंगे तो अच्छा होगा. दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से. करेंगे तो अच्छा होगा. तो देखो नहीं तो हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे सारे क्वेश्चन. तो अभी तक पॉलिनॉमियल टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो जाता है. सारे क्वेश्चन सारे थिंग वी हैव डिस्कस्ड. आप लोग क्या कर सकते हो, ये कंप्लीट करो, पूरा का पूरा 54 क्वेश्चन तक कंप्लीट करना है. एंड यू कैन प्लान टू कंप्लीट द टेक्स्ट बुक एज वेल. तो टेक्स्ट बुक में के क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएंगे इफ़ यू नो ऑल दिस क्वेश्चंस प्रॉपरली. ओके, बहुत इजी हो जाएंगे. बहुत एक दो तीन क्वेश्चन है जो डिफिकल्ट है, वो भी हम लोग बाद में डिस्कस करने वाले हैं बिफोर द एग्जामिनेशन. दैट मीन्स 1 डे बिफोर द एग्जामिनेशन हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट बुक के डिफिकल्ट क्वेश्चंस कंप्लीट कर देंगे. ओके, तब तक के लिए आप लोग इतना काम कंप्लीट कर दो. थैंक यू सो मच. बाय बाय. सी यू टुमारो.